Unfortunately, the special addressee won't be joining today due to some unforeseen circumstances. All right. So let's start the session. We are gathered here today for Golden Charcha, a visionary initiative conceptualized by CA Vishnu Kumar Tulsian, the esteemed chairman of EIRC. Golden Charcha stands as a platform dedicating to enrich professional discussions, knowledge, fostering intellectual discussions, and promoting continuous learning among members of the accounting fraternity. CA Vishnu Kumar Tulsian is a highly respected professional known for his leadership, foresight, and a deep contribution to chartered accountancy profession. Under his guidance, Golden Charcha has evolved as a distinguished series that bring together experts and thought leaders to share their insights and experience for the benefit of professional community. Our today's topic is analyzing stocks using fundamental analysis, and our speaker for today is CA Pushpadeep Rungta. So let me just introduce him. Mr. Pushpiti Prunta is a chartered accountant with over 5 years of specialized experience in public practices as a partner in PD Rungta and Company, and also has completed all three levels of CFA program. He currently serves as a director at Spinaro Commercial Limited, which has successfully achieved its listing on BSE and SME Exchange. In his capacity as Spinro Commercial, Mr. Rungta played as an instrumental role in the company's public listing process, collaborating closely with both lead manager and executive leadership team. This unique position has afforded him comprehensive insight into the SME listing process from multiple perspectives, encompassing both strategic management decision making and regulatory compliance requirement. So, with that, I would like to welcome you, sir, and over to you. Hi, thank you for the introduction, Rashi. I hope I'm audible. Yes, sir. Just Yes, sir, audible. before that, I would like to welcome Vishnu Kumar's Tulsian sir, and I would like just like him to speak a few words. No, time is very less, and we all came to listen Pushdeep, my younger brother, and I'm delighted to welcome you, Pushdeep, for this Golden Charcha event, which is a very iconic event of the ERC, where we try to connect the chartered accountant from village to town, and young chartered accountant is given the opportunity to come and speak and utilize the resources of ERC because ERC is yours, and everything is being managed by all of you. So you are the real a stakeholder of the ERC. So I am just here to work for you. So this is an opportunity given to everyone. And for the information, yes, Rasi is just qualified, immediately qualified as chartered accountant. And I really praise her that she came spontaneously and told, sir, I want to serve through the ERC. So I really, Rasi, I am really very much helpful, very much thankful to you that you took this initiative from the front. So yes, now over to Rasi for taking the session ahead. Thank you, sir. I would just like the speaker to continue with the session. Yeah, so I'm audible, right? Just a Yes, second. it's audible. All right. Uh, So I'll be speaking in Hindi and English, so I hope everyone is okay with that. So आज का अपना topic जो है ना, it's on fundamental analysis. So I have a little presentation that I've prepared. I would like to share the screen. I think yeah. Is it visible? Is my screen visible? Yes, it's visible. All right. So just a second. Uh, I am a huge follower of Mr. Warren Buffett, and I believe that the fundamental analysis यानी कि स्टॉक का जो एक कोई भी कंपनी की स्टॉक का जो एक बेसिस होता है वो लॉन्ग टर्म में उसकी अर्निंग्स ही डिफाइन करती हैं. So it is a very famous quote that Mr. Warren Buffett often says that in the long term, price is in essence a slave of its earnings. तो ऐसा क्यों बोला जाता है? सिंपली बिकॉज हम फंडामेंटल एनालिस्ट्स और वैल्यू इन्वेस्टर्स जो हैं
हम लोग ये मानते हैं कि शॉर्ट टर्म में प्राइस चेंजेस, प्राइस स्विंग्स या मूवमेंट्स जो हैं, ट्रेंड्स जो हैं, प्राइसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। बट अगर हम एक लंबा पीरियड देखें, 30-40 साल का अगर पीरियड देखें, तो उस लंबे पीरियड में अर्निंग्स ही सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती हैं किसी भी सिक्योरिटी को। क्योंकि क्या है कि कोई भी डेटा को चेरी पिक करना बहुत इजी है। कि मैं अगर कोई लोएस्ट पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल कोविड के पॉइंट पर मैं पिक करूं एंड आज के डेट पर देखूं, तो मेरे को कोई भी मेरे को इंडेक्स ही 4x 5x प्रॉब्ली ग्रोथ दिखेगी, या 3x 4x ग्रोथ दिखेगी इंडेक्स में। एंड कोई भी सिक्योरिटी में 5x या 10x ग्रोथ दिख सकती है। तो उस चेरी पिकिंग को अवॉइड करने के लिए हम एक लंबा पीरियड को लेते हैं एनालाइज करने के लिए। So Warren Buffett famously said that if you aren't willing to own a stock for 10 years, don't even think about owning it for 10 minutes. So that is how long horizon one should aim to keep. Obviously, it's not possible for everyone to keep such a long horizon. सबके अपने अपने needs होते हैं. But that is the horizon that we should aim for in life when we are investing in a stock of a company. तो आज का हम लोग का आई ट्राई टू कवर एज मच एज आई कैन। हम लोग का ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है विच आई विल ट्राई टू कवर इन दिस गोल्डन चर्चा। फर्स्ट इज बेसिक बेसिक ऑफ फंडामेंटल इन्वेस्टिंग। फिर हम मोट्स समझेंगे कि मोट्स किसे बोलते हैं। फिर कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स समझेंगे बिकॉज मोस्ट आई presume that most of the gathering here is either chartered accountants themselves or CA students or students of finance. So I believe some of the things are very simple and they come very easily, naturally to them. But उससे related कुछ concepts हैं जो शायद सबको ना पता हो, तो I would like to discuss that. We'll come to valuation, कि क्यों valuation ज़रूरी है। You see, a very good company bought at a bad price will not give you good results. But a good company bought at a very good price can give you good results. So therein lies the concept of valuation, जहाँ पे हमें अच्छी कंपनीज को अच्छे प्राइसेस पे भी लेना पड़ेगा। And then we'll study some case study and then we'll close it off with a conclusion. I'll try and cover as much as I can in 40-45 minutes that I have. So first is understanding fundamental investing. तो एक फंडामेंटल इन्वेस्टिंग, फंडामेंटल वर्ड ही ये बताता है कि हम लोग किसी भी स्टॉक के अंडरलाइंग बिजनेस रियलिटी के साथ डील कर रहे हैं। और अंडरलाइंग बिजनेस रियलिटी किन चीज़ों से बना होता है? वो कंपनीज के फाइनेंशियल से बना होता है। इट इज़ राइट ऑपोजिट ऑफ स्पेक्यूलेटिंग इन शॉर्ट टर्म प्राइस स्विंग्स। तो उसका राइट ऑपोजिट है, हमें शॉर्ट टर्म प्राइस स्विंग नहीं करने, हमें BTST नहीं करना, हमें लेना है लॉन्ग टर्म विजन से। तभी ये फंडामेंटल एनालिसिस काम आता है। अगर आप ये बोलोगे कि नहीं मैंने तो फंडामेंटल एनालिसिस किया और आज लिया लेकिन फिर भी दाम बढ़ नहीं रहा, देन यू आर इन फॉर अ वेरी शॉकिंग रियलिटी। बिकॉज आप जब कोई भी शेयर्स परचेज करते हो तो पहले first 3 to 5 years, first I would say first 2 to 3 years, you play with the volatility of that stock. And if you become a little, if you have doubts in that period, you might even suffer losses. So uh, we have to be very careful of our horizon when we are investing in the stock market. सबसे पहली बात तो जो आपके अगले 5 साल में पैसे लगने हैं, जो भी आपकी नीड है अगले 5 साल में, वो स्टॉक मार्केट में होनी नहीं चाहिए। तो उसको छोड़ के अपने को आगे देखना है। सो एक एक कैलकुलेशन अपने देखते हैं यहाँ पर। प्राइस इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर इनटू पी रेशियो। तो जो मैं बोल रहा था कि इन द लॉन्ग लॉन्ग रन प्राइस इज अ स्लेव ऑफ द अर्निंग्स, तो क्या है कि अर्निंग्स पर शेयर जो है ये कंपनीज डिक्टेट करती हैं। जो मैनेजमेंट ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी वो ज़्यादा अर्निंग्स पर शेयर कमा कर ला कर देगी अपने शेयर होल्डर्स को। तो ये तो हमें समझ में आता है कि प्राइस डायरेक्टली अर्निंग पर शेयर से लिंक्ड है। जस्ट अ सेकेंड। I think your voice is breaking in between. It is breaking क्या? Yeah, हमें a little bit. is it better now? Yeah, it's better now. All right. Yeah. So can you see my marker? Is it visible Yeah, on your the screen? marker is visible.
ऑल राइट, सो वी कैन सी कि ईपीएस इज डायरेक्टली लिंक टू प्राइस, जैसे जैसे अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी प्राइस भी बढ़ेगी। तो सेकंड कंपोनेंट आ जाता है पी रेशियो का। पी रेशियो बेसिकली एक परसेप्शन रेशियो है कि कंपनी को कैसे परसीव किया जाता है मार्केट में। अगर किसी कंपनी किसी सेक्टर कोई सेक्टर अभी बहुत हॉट हो रखा है तो उसकी पी रेशियो बढ़ जाती है, कोई सेक्टर अभी आउट ऑफ फेवर है तो उसकी रेशियो पी रेशियो गिर जाती है। बेसिकली अ गेम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। बट इन द लॉन्ग टर्म क्या होता है, ये पी रेशियो एक एवरेज रेट पे चलती है, बट अर्निंग्स पर शेयर जो है अगर वो बढ़ते रहे तो प्राइस भी बढ़ता रहेगा। दैट इज द कोर अजम्पशन ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। नाउ अंडरस्टैंडिंग, सो इट इज रूटेड इन बेंजामिन ग्राहम्स आइडिया कि बुफे ने ना वॉरेन बफेट ने क्या किया, स्टॉक ओनरशिप को एक बिजनेस ओनरशिप जैसा माना। ही लुक्स फॉर कंपनीज विच आर अंडरस्टैंडेबल। वॉरेन बफेट इसे बोलते हैं सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, यानी कि आप उन सब कंपनीज को देखो ही मत जो आपको समझ ना आती हो, आप वो सब कंपनीज देखो जो आपको सही में समझ में आती हो, जिनकी अर्निंग्स प्रेडिक्टेबल हो। जहाँ अर्निंग्स बहुत फ्लक्चुएट करे ना, वैसे कंपनी से वॉरेन बफेट दूर रहना चाहते हैं और वैसे कंपनी से हम भी दूर रहना चाहते हैं। So that is one idea behind investing here, that invest in the companies which are in the circle of competence, in your circle of competence, and buy them right when they are undervalued. तो बेसबॉल में क्या होता है ना, 3 हिट्स मिलते हैं बेसबॉल में। जैसे यहाँ पे क्रिकेट होता है, क्रिकेट में अगर बॉल निकल गई और विकेट पे हिट कर गई तो आउट हो जाता है। बेसबॉल में क्या होता है, 3 हिट्स मिलते हैं, अगर 3 स्ट्राइक्स हो जाते हैं तो जो बैटर होता है वो आउट हो जाता है। तो वॉरेन बफेट बोलते हैं लाइफ में आपको सिर्फ तीन तीन स्ट्राइक्स नहीं मिल रहे, आपको बहुत स्ट्राइक्स मिल रहे हैं। आप पे बहुत सारी कंपनीज फेंकी जाएंगी, आप पे एक नया टेक कंपनी फेंकी जाएगी, एक नई फूड डिलीवरी कंपनी फेंकी जाएगी, एक नई कोवर्किंग कंपनी फेंकी जाएगी। अब आपको चुनना है कि आपको किस पे अटैक करना है, कौन से बॉल पे बैट घुमानी है, राइट। सो बट दैट वन डिसीजन हैज़ टू बी द राइट डिसीजन। तो ही लुक्स फॉर कंपनीज विद प्रेडिक्टेबल अर्निंग्स एंड अंडर वैल्यूड। ये बहुत ज़रूरी है कि वो स्टॉक का अंडर वैल्यू होना ज़रूरी है। अच्छी कंपनीज जो शायद कभी कभार मार्केट में खराब दाम पे बिक रही हूँ, खराब यानी हमारे लिए अच्छी हैं बट लोअर प्राइसेस पे बिक रही हूँ। आइए इसे और इन डेप्थ समझते हैं हम लोग। सेकंड अपने जो समझते हैं कि अच्छी कंपनीज हम लोग किसको बोल रहे हैं। अच्छी कंपनीज वो हैं जिनमें मोट्स हो। अब क्या होता था पुराने ज़माने में, ऐसे कैसल्स बनते थे जो सराउंडेड होते थे बड़े बड़े डिच से। मतलब ये क्या होता था, गड्ढा बड़ा सा खोद दिया जाता था, पानी भर दिया जाता था ताकि कोई भी अगर अटैक करे तो घुस ना सके कासल में। ये चीज़ कासल्स को बचाते थे, ये सब ये किलों को बचाते थे। तो सिमिलरली इन टुडेज वर्ल्ड दीज आर कॉल्ड मोड्स ऑफ द कंपनी, यानी कि ड्यूरेबल कंपेटिटिव एडवांटेज बोला जाता है इन्हें। ये ऐसी चीज़ें हैं, ये डिच जो है ना, यही वो डिच है जो एक एशियन पेंट्स को एक बिरला उपज से बचा पाता, या सिमिलरली कोई भी कंपनी को कंपटीशन घुसने से बचा सकता। सो दीज आर द मोड्स ऑफ द कंपनी। तो ये क्या होती हैं, हम लोग अब इस सेक्शन में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन बिजनेसेस को देखें जहां पर ये मोड्स दिखें हमें, कि ये क्या है, ये कंपेटिटिव एडवांटेजेस कैसे देखें। तो कई तरीके के मोड्स हैं। सबसे पहला मोड्स है एंट्री बैरियर, लो कॉस्ट प्रोडक्ट। लो कॉस्ट प्रोडक्ट ऐसा हो गया, मान लीजिए जैसे च्युइंगम। वॉरेन बफेट के बहुत एक अच्छे फ्रेंड हैं, तो उन्होंने उनको बोला कि आप सॉफ्टवेयर कंपनीज में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते, देखिए कितनी तेज़ी से सॉफ्टवेयर कंपनीज बढ़ रही हैं। तो वॉरेन बफेट ने पूछा कि अच्छा एक बात बताओ कि क्या सॉफ्टवेयर कंपनीज दुनिया बदल देंगी, वो बोले हाँ बदल देंगी। तो वॉरेन बफेट बोले कि तो जब वो दुनिया बदल जाएगी तो क्या लोग च्युइंगम खाना बंद कर देंगे। तो बोले नहीं, च्युइंगम तो खाना प्रोबेबली बंद नहीं करेंगे। तो यही तरीका है एक लो कॉस्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने का, या ऐसी प्रोडक्ट जिसकी हाई ब्रांड रिकॉल हो। फॉर एग्जाम्पल कोका कोला हो गया, फॉर एग्जाम्पल जिलेट हो गया, जिसमें हाई ब्रांड रिकॉल हो, लोग उसी ब्रांड से स्टक रहना चाहते हैं, चेंज नहीं करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल एप्पल भी हो गया, ह्यूज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अगेन कोका कोला का एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सेट होता है, पूरे दुनिया भर में कोका कोला बनता है। यहाँ तक कि अम, छोटे कुछ कुछ एक स्टैटिस्टिक्स है कि पर मिनट कितना कोका कोला दुनिया में बिकता है। सो इट इज सो ह्यूज, इट हैज सच ह्यूज डिमांड। फिर लास्टली आता है
मतलब इसमें और भी बहुत तरीके हैं आइडेंटिफाई करने के, एंट्री बैरियर्स आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। लो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अक्सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लोग बहुत अच्छा मानते हैं कि कोई कंपनी बहुत हाई R&D कर रही है तो बहुत अच्छा है। लेकिन वॉरेन बफेट थोड़े कॉन्ट्रेरियन है इस थॉट में कि वो लो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट्स वाली कंपनी खोजते हैं। कोका कोला जिसमें कोई R&D ना लगे, रिगलीज जिसमें कोई R&D ना लगे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जिसमें कोई R&D ना लगे। तो क्यों क्यों अक्सर ऐसी कंपनीज वो खोजते हैं? बिकॉज अगर वो मानते हैं कि अगर कहीं पे R&D लगे ना, कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगे, तो वहाँ पे फेलियर का कॉस्ट हाई हो सकता है। सेकेंडली, उन कंपनीज को बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है बाकी कंपनी से आगे रहने में, जिसे बोलते हैं कि दे हैव टू स्पेंड अ लॉट टू स्टे अहेड ऑफ द कर्व। तो उस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं वॉरेन बफेट और उनके जैसे इन्वेस्टर्स। तो ये कुछ ग्रेड ए मोड्स हो गए। अब ग्रेड बी हो गए, मेड फॉर अ पेनी, सोल्ड फॉर अ डॉलर। यानी कि उन उन इन सारी कंपनीज में ये सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन टेस्ट रिकॉल नहीं है। तो जैसे रिन हो गया, एरियल हो गया, विम हो गया, फेविकॉल हो गया, जिलेट हो गया, प्रेस्टीज कुकर्स हो गए। तो ये कुछ उनके एग्जाम्पल्स हैं। अब आ जाते हैं ग्रेड सी मोड में। ग्रेड सी मोड हो गए कुछ ऐसे, मतलब अब ये है ना, ये कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो कोई कॉलेज से ग्रेजुएटेड स्टूडेंट इमीडिएटली नहीं सोच सकता करने का। फॉर एग्जांपल वेरी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस, कॉम्प्लिकेटेड बिजनेसेस, ऐसे बिजनेसेस जिसमें लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो। फॉर एग्जांपल लार्ज बैंक्स, लार्ज नेशनल बैंक्स, ये हाई कैपिटल इंटेंसिव हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेटेड बिजनेसेस हो सकती हैं, सब इसमें एंट्री नहीं कर सकते, तो एंट्री बैरियर है। अगर और बहुत सारे केस में क्या होगा ना, हम लोग जब एक्चुअली एनालिसिस करने जाएंगे तो हमें मोड्स नहीं दिखेंगे, क्लियरली नहीं दिखेंगे। जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया वो बहुत क्लियर कट एग्जांपल है मोड्स के, बट कई बार वो मोड्स क्लियरली नहीं दिखते। उस केस में हम लोगों को क्या करना चाहिए कि इंडस्ट्री के टॉप 5 लीडर्स को उठाकर उनको ऑपरेटिंग मार्जिन चेक करना चाहिए कि उनका ऑपरेटिंग मार्जिन कैसा है। अगर उनका ऑपरेटिंग मार्जिन सिमिलर है, यानी कि उस सेक्टर में और उस बिजनेस में कुछ ना कुछ मोट है कि टॉप 5 इंडस्ट्री लीडर जो हैं वो एक जैसा ऑपरेटिंग मार्जिन कमा पा रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये सेक्शन 2 हमारा खत्म हुआ। वी विल गो टू सेक्शन 3, कोर कंपोनेंट्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। बैलेंस शीट कॉमन साइजिंग, मतलब हम लोग क्या है ना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, और ऑब्वियसली वी आर इधर चार्टेड अकाउंटेंट्स और स्टूडेंट्स ऑफ फाइनेंस, तो हमें ये अच्छे से पता है कि क्या है नहीं है कॉमन साइजिंग। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एवरी वन हियर, आई जस्ट एक्सप्लेन इट वंस। हम लोग बेसिकली कॉमन साइजिंग में हर लाइन आइटम को उनके टोटल से डिवाइड कर देते हैं। तो उसी तरीके से इक्विटी कैपिटल टू मार्च 20 में पीआई इंडस्ट्रीज का 14 डिवाइडेड बाय 4225। सिमिलरली असेट्स में इन्वेंट्री 799 डिवाइडेड बाय 4225। यानी कि मैंने क्या किया है कि यहाँ पर टोटल टोटल से हर एक लाइन आइटम को डिवाइड कर दिया। तो उससे हमको एक एक कॉमन कॉमन साइज स्टेटमेंट मिला बैलेंस शीट का। अब आई वांट यू टू गो थ्रू दिस वंस, आई विल गिव यू अ मिनट एवरीवन प्रेजेंट। आप एक बार खाली इसे गो थ्रू करो और देखो कि आप इससे क्या डिराइव कर पा रहे हो, इससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो। क्यों मैं ये करना करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग सबने कहीं ना कहीं ये बैलेंस शीट देखा है, पढ़ा है, बैलेंस शीट्स के बारे में हम जानते हैं, बट ये सब भी समझना बहुत ज़रूरी है बैलेंस शीट्स के बारे में। Does anyone have any observation, anything they've observed in this balance sheet? I've highlighted certain sections कि कुछ कुछ sections important है। अगर किसी कोई कुछ बोले तो बताइए, नहीं तो फिर we'll discuss it further. Anyone? All right. So if we notice in this common size balance sheet common sizing, just a second. हाँ, तो अगर हम ये बैलेंस शीट कॉमन साइज में देखें तो हमें ये दिखेगा कि बैलेंस शीट का बेसिकली 2 पार्ट होता है, असेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज को अगर हम लोग सोर्स ऑफ फंड मान लें एंड असेट्स को एप्लीकेशन ऑफ फंड मान लें, तो हम लोग को ये दिखेगा कि असेट्स कुछ परसेंटेज से बढ़ें। अगर अपने ये सारी चीज़ें को ऐड करें
फिक्स्ड एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, कैश इन कैश इक्विवेलेंस, अगर इन सबों को ऐड करें तो हमें दिखेगा 10-12% से असेट में ग्रोथ आया है। बट अब चलते हैं सोर्स ऑफ फंड में। सोर्स ऑफ फंड अगर हम लोग देखेंगे तो रिजर्व का जो प्रपोर्शन था टोटल टोटल सोर्स ऑफ फंड में या टोटल लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में, वो 62% से बढ़ के 81% हो गया, 20% से बढ़ गया। एंड बोरोइंग्स जो 12% थी वो 2% के आसपास आकर खड़ी हो गई। सिमिलरली अदर लाइबिलिटीज भी 25% से 16-17% के आसपास आ गई। यानी कि सिर्फ ये बैलेंस शीट स्टडी करके हमें समझ में आ रहा है कि मैनेजमेंट कुछ तो अच्छा कर रही है। प्रॉब्ली हम इन 4 साल में देखेंगे तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगा इस कंपनी का। अब चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एक सेम सिमिलर कंपनी है यूपीएल। सो अगेन आई गिव यू 1 मिनट एंड जस्ट गो थ्रू इट वंस, जस्ट सी इट वंस, क्या दिख रहा है आप लोगों को। ऑल राइट, तो वी केयरफुली नोटिस, हमें ये दिख रहा है कि इनका बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी अगर हम लोग देखें तो 43 + 28 इज अबाउट 71%, जो कि लगभग वही रह गया 4 साल में। 71 का 71% ही रह गया। एंड फिक्स्ड एसेट्स वगैरह कुछ कम ही हुए हैं, बढ़े नहीं हैं। बट इसमें एक और गौर देने वाली चीज़ ये है कि इसका जो टोटल बोरोइंग्स था 29,388 से 29,754 ही रहा। यानी कि इवन दो बैलेंस शीट थोड़ी एक्सपैंड ज़रूर की है, बट इट इज़ विद द सेम बोरोइंग लेवल। यानी 4 साल में इन्होंने बोरोइंग्स को रीपे ही नहीं किया, सेम बोरोइंग लेवल पे मेंटेन रखा है, which is a very it is a kind of red flag when you in the world of investing, कि इस तरीके का कोई कोर्स फॉलो कर रही है कोई कंपनी। तो अब अगेन तो ये सब क्या है ना, हम लोग बैलेंस शीट्स पढ़ते हैं, बट इस तरीके से भी बैलेंस शीट्स को पढ़ा जा सकता है जब हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो। अगेन ये एक कंपनी है, बहुत फेमस हुई थी बीच में ये कंपनी। आई वुड आस्क यू जस्ट टू गो थ्रू द रेवेन्यू। तो हम सेल्स देख पा रहे हैं 2017 में 62 था, वहाँ से टीटीएम बेसिस में 1452 हो गया। सो मे बी लास्ट 7-8 ईयर्स में, और 2 करोड़ का प्रॉफिट से 108 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। तो प्रोबेबली कंपनी बहुत अच्छा कर रही होगी। इवन 1 करोड़, सो इवन मार्च 2024 का अगर ऑडिटेड रिजल्ट्स भी देखें तो 1 करोड़ से 53 करोड़ हो गई ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, नेट प्रॉफिट। अब मैं एक और चीज़ पे आप लोगों को गौर करना चाहूँगा, सेम कंपनी का अगर हम लोग कैश फ्लो देखें, इफ वी जस्ट लुक एट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अगर हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है। ये चीज एक बहुत बड़ी रेड फ्लैग है। इफ वी सी यहाँ पर तो अब मैंने इसे कंपेयर कर रखा है नेक्स्ट स्लाइड में। हमारी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस 2024 में -98 लाख है, 98 करोड़ है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 330 करोड़ थी सेम पीरियड में। सिमिलरली सेम पीरियड में 108 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। तो यहाँ पे क्लियर एक रेड साइन दिख रहा है, एक रेड फ्लैग दिख रहा है। सिमिलरली यहाँ पर मार्च 2022 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स -50 करोड़ है, एंड सॉरी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस -50 करोड़ है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 78 करोड़ एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स 33 करोड़। यानी कि क्या समझ में आ रहा है कि इवन दो कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है बट एक्चुअल कैश जनरेशन नहीं कर पा रही। इसीलिए जब हम अपना एनालिसिस करें किसी भी कंपनी का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस को नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों से कंपेयर करें। हो सकता है जैसे कुछ साल पॉजिटिव है कुछ साल नेगेटिव है, तो अगर अपने 3-3 साल या 5-5 साल का एवरेज लें तो ये 60-70% तो मिनिमम होना ही चाहिए, कि जितना प्रॉफिट हो रहा है उसका 60-70% कैश में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये जानना बहुत ज़रूरी है एज अ वैल्यू इन्वेस्टर, एज अ फंडामेंटल एनालिस्ट। अब कुछ की फाइनेंशियल रेशियोज है, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दीज,
बस आप लोगों को बस स्क्रीन पे सामने रख दिया, जस्ट गो थ्रू दिस वंस। सो डेट टू इक्विटी रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम सबको पता है। जहाँ कंपनी अगर डेट नहीं मेंटेन कर पाती है एंड कोविड जैसा वन इन अ लाइफ टाइम सिचुएशन आ गया, और हम अगर 30-40 साल के लिए कोई स्टॉक को होल्ड करना चाह रहे हैं, तो डेट टू इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहाँ पे अगर डेट ना रीपे कर पाए तो वो कंपनी का एग्जिस्टेंस पे ही बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि ये कंपनी रहेगी भी कि नहीं रहेगी। रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्कर है अगेन, कि आपके इक्विटी के पैसे से मैनेजमेंट कितना पैसा जनरेट कर पा रही है, इन्वेस्टेड अमाउंट से मैनेजमेंट कितना पैसा जनरेट करके अपने शेयर होल्डर्स को वापस दे पा रही है। तो दैट इज़ रिटर्न ऑन इक्विटी। फ्री कैश फ्लो मार्जिन्स, फ्री कैश फ्लो मार्जिन्स के लिए मैं आपको पिछले स्लाइड में लेकर जाऊंगा एक बार फिर से। अगर हम लोग फ्री कैश फ्लो मार्जिन्स देखे होते ना इस कंपनी का, तो हमें समझ में आ जाता कि ये कंपनी के पास फ्री कैश फ्लोज नहीं है। फ्री कैश फ्लो हो गया बेसिकली आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स इन फिक्स्ड एसेट्स, वो आपको फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी दे देता है। तो फ्री कैश फ्लो मार्जिन जानना बहुत ज़रूरी है। जनरली अगर फ्री कैश फ्लो बाय सेल्स, इसको फ्री कैश फ्लो मार्जिन बोलते हैं, अगर वो 10% या उससे ज़्यादा होता है तो ये समझते हैं कि कंपनी बहुत अच्छी कैश रिच है, यानी कि जितना सेल जनरेट कर रही है उसका 10% कैश में कन्वर्ट कर ले रही है, विच इज़ वेरी बिग। दैट अमाउंट इज ह्यूज इफ इट इज़ हायर देन 10%। प्रॉफिट मार्जिन अगेन इंपॉर्टेंट है, बट इसको कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा कैश फ्लो के साथ, कि प्रॉफिट मार्जिन ग्रो हो रहा है कि नहीं, एंड संग में कैश फ्लो ग्रो हो रहा है कि नहीं, एंड डेट मेंटेन्ड है कि नहीं सही लेवल पर। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो हम लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं, बट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है। अगेन क्यों ये ज़रूरी है, ये दिखाता है कि मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंट है, 1 रुपए के फिक्स्ड एसेट के अगेंस्ट कितना टर्नओवर जनरेट कर पा रही है। अगर हम 2-3 कंपनी सेम लाइन ऑफ बिजनेस में कंपेयर करें तो हमें समझ में आएगा कि ये मैनेजमेंट ज़्यादा एफिशिएंट है कि दूसरी मैनेजमेंट ज़्यादा एफिशिएंट है। ये मैनेजमेंट एफिशिएंसी का एक बहुत बड़ा साइन है कि आप कैपिटल कैसे एलोकेट कर रहे हो, कि फिक्स्ड एसेट्स में कैसे इन्वेस्ट किया है आपने, कैसे टाइप के प्रोडक्ट्स बना पा रहे हो, और कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हो। ग्रोथ इन अर्निंग्स पर शेयर, आपको इसके लिए मैं एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। ग्रोथ इन अर्निंग्स पर शेयर, जनरली हमें वो कंपनीज पसंद है जिनका अर्निंग्स बहुत ही स्मूथ हो। तो वो कैसे पता चलता है, देखिए एक कंपनी है कैप्लिन पॉइंट। अगर आप इसकी अर्निंग्स पर शेयर में देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि ओवर द इयर्स कंपनी ने बहुत स्मूथली अपना अर्निंग्स पर शेयर ग्रो किया है। 3 रुपीज़ 42 पैसा से 74 रुपीज़ 35 पैसा तक पहुंची है कंपनी टीटीएम बेसिस में। यानी एवरी ईयर कंपनी ने शेयर होल्डर का ध्यान रखा है, पहली बात कंपनी ने। और सेकंड इंडिकेटर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्यों है, सिंपली बिकॉज इससे हमें ये पता चलता है कि क्या कंपनी सिक्लिकल इंडस्ट्री में है कि नहीं है। जहाँ पे कंपनीज कोई सिक्लिकल इंडस्ट्री में रहे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे ट्रैवल हो गया, इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशन। अब जैसे ट्रैवल है तो ये एक सिक्लिकल इंडस्ट्री है। हम अब अपने अगर सिक्लिकल इंडस्ट्री के देखें, इसकी ईपीएस देखें, तो हैवी फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती हैं। 58 से 4 -6.45, ये तो कोविड का पीरियड था, बट आफ्टर दैट ऑल्सो ये जो ग्रोथ है ये बहुत अनइवन ग्रोथ रहा है। तो हम ऐसी कंपनी जनरली अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं। हमें अर्निंग्स ऐसी चाहिए जो प्रेडिक्टेबल हो, जो साल साल दर साल एक जैसे तरीके से ग्रो करते रहे। सो दैट इज व्हाट आई मीन बाय ग्रोथ इन ईपीएस। अब ये सारी तो हो गई क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, हम लोग जितने डिस्कस कर रहे थे वो क्वांटिटेटिव फैक्टर्स से। अब कुछ हम लोग क्वालिटेटिव फैक्टर्स डिस्कस करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस सबसे बड़ा क्वालिटेटिव फैक्टर है, कि व्हेन यू आर बेटिंग ऑन द कंपनी, यू आर बेटिंग नॉट जस्ट ऑन द हॉर्स, यू आर ऑल्सो बेटिंग ऑन द जॉकी। यानी कि अगर कोई अच्छी कंपनी को कोई खराब मैनेजमेंट चलाता रहे ना, तो प्रॉब्ली वो कंपनी बहुत अच्छा नहीं कर पाएगी। तो उस चीज़ को असेस करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमें जानना ज़रूरी है। अब बहुत जन बोलेंगे कि मैनेजमेंट में अंदर क्या चल रहा है कैसे पता। बहुत जन को एक्सेस ही नहीं है मैनेजमेंट को ऑब्वियसली, हमें, या बहुत जन के पास टाइम नहीं है कि मैं जाकर एजीएम में बैठूं, मैं जाकर मैनेजमेंट से मिलूं, मैं जाकर फैक्ट्री चेक करूं। बट कुछ कुछ थंब रूल्स हैं, कुछ कुछ तरीके हैं मैनेजमेंट को असेस करने का,
even when you're sitting and analyzing a company from your office or from your home. तो जैसे हर क्वार्टर या ऑन बहुत सारी कंपनीज आजकल क्या है कि कुछ रेगुलर बेसिस में या क्वार्टरली बेसिस में कॉन कॉल्स करती हैं। जब वो कॉन कॉल्स करती हैं तो वो इन्वेस्टर्स को आंसर करती हैं। तो जैसे एक ये कॉन कॉल का कटआउट है जहाँ पे एक इन्वेस्टर ने पूछा था कि अर्लियर ट्रेंड was 14%, so now we are talking of about 11 to 13%, is that right? जिसमें जो ओनर है उन्होंने या जो प्रमोटर है उन्होंने कहा यस दैट इज करेक्ट। एंड यही ऐसा ही हुआ जो इन्होंने प्रॉमिस किया था या जो इन्होंने गाइडेंस दी थी वही हुआ। 13% का ही ऑपरेटिंग मार्जिन डिलीवर किया इस कंपनी ने। तो ये मैनेजमेंट का एक अच्छा इंटेंट बताता है कि मैनेजमेंट बहुत क्लीन है। मैनेजमेंट क्लियरली बता देती है सामने इन्वेस्टर्स को कि क्या हो सकता है। जहाँ पे 14% एक हायर गाइडेंस था, मैनेजमेंट ने उसको लोअर किया, ट्रिम डाउन किया कि नहीं 11 to 13% ही मिलना चाहिए। सो दिस शोज गुड ऑन द मैनेजमेंट। कुछ और चीज़ें हम कर सकते हैं। हम चैट जीपीटी में जाकर हिस्ट्री ऑफ सेबी और अकाउंटिंग इश्यूज पूछ सकते हैं एक किसी भी कंपनी के बारे में। एंड जैसे मैंने इस कंपनी के बारे में पूछा ज्योति रेजिन्स के बारे में, तो वहाँ पे कुछ बहुत सारे प्राइस मैनिपुलेशन रिलेटेड डेटा यहाँ पर आया बाहर चैट जीपीटी में। तो ये भी एक रेड फ्लैग दर्शाता है कि क्या मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई पास्ट अकाउंटिंग इश्यूज रह चुके हैं, क्या कोई सेबी रिलेटेड इश्यूज रह चुके हैं क्या। दिस कैन सिंपली बी डन ऑन चैट जीपीटी। Now we come to the next section of, and there are a few more things to discuss. Sorry, there are a few more things to discuss when we are talking about qualitative factors. जब corporate governance की बात करें, कोई engineering company में हमें ऐसा चाहिए होगा कि जो board of directors हो, जो management top management हो, वो educationally sound हो, sound enough हो कि वो वैसी engineering company को चला सके। कोई इंजीनियरिंग कंपनी के बोर्ड पर अगर लॉयर्स हों, एडवोकेट्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही हों, तो प्रोबेबली इतना सही नहीं लगेगा जितना प्रोबेबली एक फाइनेंस कंपनी में लगे। तो सही सही लोग चला रहे हैं कि नहीं, कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में उनके वेबसाइट से डेटा मिल सकता है कि वो लोगों को क्या एक्सपीरियंस है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। इसके अलावा छोटी कंपनीज जो हैं, जो स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग, वहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है कि प्रमोटर होल्डिंग 50% या उससे ज़्यादा तो है कि नहीं है। और इसके अलावा हम लोग को ये भी देखना चाहिए कि उसमें से कुछ प्लेज्ड है, प्लेज तो नहीं है ना, कोई भी शेयर प्रमोटर्स ने प्लेज तो नहीं करवा रखा। तो ये सब कुछ क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। कंपनी का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर कैसा है, बहुत सारी सब्सिडरीज हैं क्या, बहुत सारी एसोसिएट्स हैं क्या, जो डायरेक्टर्स हैं वो सिमिलर कंपनी में डायरेक्टर्स हैं कि नहीं है, सिमिलर साइज ऑफ कंपनीज में। कैसे चेक कर सकते हैं ये, हम लोग सिंपली एमसीए में जाकर वो डायरेक्टर के बाकी रिलेटेड कंपनीज निकाल सकते हैं जिसमें वो डायरेक्टरशिप ले रखे है। एंड फिर उनका रेवेन्यू फिगर्स निकाला जा सकता है। 100 रुपये का फीस देकर उनका सारा एनुअल कंप्लाइंसेस डाउनलोड किया जा सकता है। वहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि उनका रेवेन्यू कैसा है, क्या वो लिस्टेड कंपनी जितना रेवेन्यू ही कर रही है, उससे ज़्यादा कर रही है या उससे कम कर रही है। तो इससे एक और चीज़ पता चलता है कि डायरेक्टर को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं है। तो ये सब, दीज आर सम वेज टू असेस कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नाउ कमिंग बैक टू आर प्रेजेंटेशन, सो वी कम टू वैल्यूएशन। सो वॉरेन बफेट ने ये भी कहा था, प्राइस इज वॉट यू पे, वैल्यू इज वॉट यू गेट। मतलब कि प्राइस तो आप जो दे रहे हो बट वैल्यू सबके लिए अलग अलग हो सकता है। So there are many methods of valuation. So I personally prefer using discounting of free cash flows. बहुत सारे तरीके हैं वैल्यूएशन करने का, बट मेरे को लगता है कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड में ना जाके बहुत सिंपल तरीके से इसको वैल्यू करना चाहिए। जो फ्री कैश फ्लोज हैं उनको उस कंपनी की ग्रोथ रेट से डिवाइड कर देना चाहिए, जिसे गॉर्डन ग्रोथ रेट फॉर्मूला बोलते हैं, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल बोलते हैं। तो ये कैसे किया जाए, फॉर एग्जाम्पल हम जो अभी डिस्कस कर रहे थे, मैं एक वेबसाइट पे जा रहा हूँ मॉर्निंग स्टार डॉट इन, क्योंकि यहाँ पे फ्री कैश फ्लो का डेटा बहुत इजीली मिल जाता है। तो हम लोग जैसे एक कंपनी डिस्कस कर रहे थे कैप्लिन पॉइंट, ये रही कैप्लिन पॉइंट लैबोरेटरीज।
अब अगर अपने इसके यहाँ पर नीचे जाएं तो वील फाइंड फ्री कैश फ्लो हियर। 31 मार्च 2025 में 3.6 बिलियन रुपीस का फ्री कैश फ्लो था कंपनी का ना। अगर हम लोग एक्सेल खोल लें, जस्ट अ सेकेंड। तो बहुत सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, 3.6 डिवाइडेड बाय, अगर हम लोग ये मान लें कि कंपनी 6% से ग्रो करती रहेगी एंड 4% से इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा ईयर ऑन ईयर, तो हमें कंपनी का वैल्यूएशन 101.180 बिलियन रुपीस मिल रहा है। अब अगर अपने इसको कंपेयर करें आज के मार्केट वैल्यू से, आज का मार्केट कैप है कंपनी का 153 बिलियन, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा आया है हमारा वैल्यूएशन। सो दिस इज़ हाउ आई पर्सनली प्रेफर यूजिंग वैल्यूएशन, बट अलग अलग कंपनीज का अलग अलग तरीका हो सकता है। सबका अपना अपना तरीका होता है। आई एम नॉट सेइंग वन मेथड इज़ राइट और द अदर मेथड इज़ रॉन्ग, इट्स जस्ट वन वे ऑफ यूजिंग। देर इज अनदर अप्रोच वेर हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिमिलर कंपनी का पी रेशो उठाकर करंट कंपनी की अर्निंग से मल्टीप्लाई करके प्राइस निकाल सकते हैं कि कंपैरेटिव पी रेशियो क्या आता है। कंपैरेटिव पी रेशियो के बेसिस पे अपने वैल्यूएशन कर सकते हैं। बट जो भी हो, हमें उस वैल्यू में एंटर करने का टारगेट करना चाहिए जो करंट कंपनी के प्राइसेस करंट इंट्रिंसिक वैल्यू से लोअर आए। यानी कि इस केस में जो 180 आया, आई विल नॉट बी बाइंग इट एट 180। जैसे अभी करंट प्राइसिंग ऐसी चल रही है जो मार्केट वैल्यू 153 बिलियन है। सो दिस इज समथिंग विच मेक्स द कंपनी अट्रैक्टिव ऑन अ वैल्यूएशन बेसिस। मैं ये नहीं बोल रहा कि कंपनी बहुत बड़ी है, मैं ये बोल रहा हूँ वैल्यूएशन बेसिस में ही अट्रैक्टिव है। अब वो कंपनी कैसी है नहीं है ये रिसर्च करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, बट वैल्यूएशन बेसिस में ही कंपनी अच्छी लग रही है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी आता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वॉरेन बफेट के दो रूल से आया है, नेवर लूज योर मनी एंड डोंट फॉरगेट रूल नंबर वन। Rule number one is never lose your money, and rule number two is never forget rule number one. So always prefer buying companies which are under the intrinsic value। यानी कि इस वैल्यू इस 180 वाले वैल्यू को आई विल गिव इट सम से 75% वेटेज देकर 135 बिलियन। तो जब जब तक इसका मार्केट कैप 135 बिलियन के नीचे नहीं आ जाता, आई विल नॉट बी बाइंग शेयर्स ऑफ दिस कंपनी फॉर एग्जाम्पल। सो दिस इज हाउ यू कैन सेट अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर योर सेल्फ। यहाँ पे मैंने 25% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी लगाया। ऑल राइट, सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूएशन। अब हम लोग क्या करेंगे ना, एक छोटी सी केस स्टडी लेंगे। वॉरेन बफेट की दो केस स्टडीज हैं जो बहुत इलस्ट्रेटिव हैं, एक कोका कोला है और एक एप्पल है। तो दोनों अलग अलग एरा से आते हैं, एक 1980s एक 2010, लेकिन दोनों में समझने का बहुत कुछ है हमारे लिए। पहला केस स्टडी है कोका कोला का। ये एक टाइमलेस ब्रांड है। कोका कोला ऐसा है ना जो शायद ब्रांड जो चालू हुआ था वो 1800 समथिंग में चालू हुई थी और ये आज तक चलते आ रही है। एंड इवन दो लोग बहुत फिटनेस से रिलेटेड आजकल बहुत अवेयर हैं, फैट से रिलेटेड बहुत अवेयर हैं, लेकिन आज के दिन भी लोग कोका कोला पीना नहीं बंद कर रहे। एंड कोका कोला भी अपने नए नए छोटे छोटे इन्वेंशंस करते आ रही है। तो क्या हुआ था, इन लेट 1980s कोका कोला वॉज आउट ऑफ फेवर। इसके बारे में कुछ न्यूज़ थी खराब, कुछ गड़बड़ न्यूज़ थी कोका कोला के बारे में। एंड बफेट ने ये रिकग्नाइज किया कि इस हेडलाइंस, ये सब तो नॉइज़ है, एक्सटर्नल नॉइज़ है, बट ये सब हेडलाइंस के नीचे एक कंपनी है जिसका बहुत बड़ा ब्रांड है। इस बड़े ब्रांड को बफेट ने समझा कि नहीं, हमें इस कोका कोला को अप्रोच करना चाहिए, परचेज करना चाहिए। क्यों परचेज करना चाहिए, क्या रीजंस थे? रिटर्न ऑन इक्विटी 30% था उस टाइम पर, यानी हर 100 रुपए पे कंपनी 30 रुपए कमा रही थी, विच वॉज मच हायर दैन इट्स इंडस्ट्री पीयर्स, यानी कि बाकी लोगों से मच बेटर कर रही थी। ब्रांड डोमिनेंस तो था ही, दुनिया भर में कोक है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत बड़ा है, एंड इसका जो इमोशनल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। कोक, आपको याद होगा एक कोक का एडवर्टाइजमेंट आया था, ओपन बॉटल ऑफ कोक ओपन हैप्पीनेस या समथिंग लाइक दैट। यानी कि इसको खुशी से या हैप्पीनेस से या सेलिब्रेशन से एसोसिएट किया जाने लगा। तो उस हैप्पीनेस को, उस इमोशनल मोड को रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल है, कोई भी और कंपनी के लिए घुस पाना कोक की जगह बहुत मुश्किल है। तो ये वॉरेन बफेट ने आइडेंटिफाई किया। डेट एंड कैश फ्लो, तो उन्होंने देखा कि डेट लेवल्स बहुत कम थे,
फ्री कैश फ्लो जो हम लोग ने डिस्कस किया वो अच्छे खासे थे, यानी कि कंपनी जितना पैसे कमा रही थी उसको फिर से री इन्वेस्ट करके और बढ़ाते जा सकती थी। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लो। प्राइसिंग पावर, कोक को इजीली, सो जो लोग कोका कोला से एडिक्टेड हैं या बाकी लोग जो जिससे भी एडिक्टेड हैं, उनको समझ में आता है कि अगर उनका प्रोडक्ट अगर एक आध रुपए ऊपर या नीचे भी हो जाए ना, वो उसे लेना बंद नहीं करेंगे। तो सिमिलरली कोक, जिनको कोक का टेस्ट बैठ गया है, वो प्रॉब्ली पेप्सी नहीं प्रेफर करेंगे, प्रॉब्ली कोई और ब्रांड नहीं प्रेफर करेंगे, वो कोक ही पियेंगे। और चाहे वो कल 10 रुपए का मिल रहा हो, वो 12 रुपए में मिलने लग जाए, तब भी वो कोक पियेंगे। So this is what he realized, that Coke could raise a few cents without losing customers. This pricing flexibility drives exponential results. और आउटकम क्या रहा? बफेट इन्वेस्टेड $1.3 billion or about 6% of the company, and it has produced tens of billion dollars in dividend. यानी कि जितना उन्होंने लगाया उसका 10 गुना तो उन्हें डिविडेंड में मिल गया। एंड उसका वैल्यूएशन आज के दिन 700 मिलियन, सॉरी 700 मिलियन, यील्ड्स ओवर 700, आज के दिन में उन्हें 700 मिलियन का रफली डिविडेंड मिलता है एनुअली। सो दिस इज द बेट दैट ही प्लेड इन अ 35 ईयर पीरियड। ये टर्म हमें देखना बहुत जरूरी है कि कितना लॉन्ग टर्म वॉरेन बफेट ने प्ले किया है। सेकेंड केस स्टडी है एप्पल इंक का। ये एक मॉडर्न इकोसिस्टम है। ये लगती लगती तो है टेक कंपनी जैसे, बट वॉरेन बफेट को देखा कि ये कंज्यूमर ब्रांड है, ये कंज्यूमर गुड जैसा है। जिन लोगों के दिमाग में एप्पल बैठ जाता है, उनको एप्पल से एंड्रॉयड में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड एप्पल कंपनी करती क्या है कि अगर आपको एक एप्पल का फ़ोन बेचती है तो संग में उसके साथ इतने सारे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेचती है कि उस इकोसिस्टम से निकालना इम्पॉसिबल है लोगों को, एप्पल के इकोसिस्टम से। जिस समय वॉरेन बफेट ने इन्वेस्ट किया उस समय स्टॉक बहुत चीप थी, उसकी अर्निंग्स ग्रोथ बहुत हाई हाई थी, एंड लोगों को उस समय स्केप्टिसिज्म था उस कंपनी के बारे में। और क्या डिसीजंस रहे? अगेन रिटर्न ऑन इक्विटी 30% से ऊपर थी, इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग था कंपनी का, ब्रांड रिकॉल बहुत स्ट्रांग था कंपनी का, स्विचिंग कॉस्ट्स बहुत हाई था, तो कस्टमर स्टिकीनेस था, यानी कस्टमर एप्पल से ज़्यादा कहीं दूर जाना नहीं चाहता था जो एप्पल का प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। अगेन कैश फ्लो मशीन, सेम फॉर्मूला है, सेम आइडिया है कि कंपनी का प्रेडिक्टेबल कैश फ्लोज है, हाई कैश फ्लोज है, फ्री कैश फ्लोज बहुत ज़्यादा है, यानी कंपनी को इन्वेस्टमेंट कर देने के बाद भी इतना पैसा बच जा रहा है कि वो कंपनी उस पैसे से कुछ भी कर सकती है। बहुत बड़ा कैश पाइल पे कंपनी बैठी है। एप्पल ने भी बहुत डिविडेंड रिटर्न किया, बायबैक्स किया, एंड मैनेजमेंट बफेट जो है, जो हम लोग ने क्वालिटेटिव फैक्टर्स डिस्कस किए उसमें देखिए एक ये फैक्टर आ जाता है, बफेट ऑलवेज एडमायर्स टिम कुक्स कैपिटल डिसिप्लिन। यानी कि जब उनके पास एक्स्ट्रा फंड रहे तब उन्होंने डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जब फंड शॉर्टेज रहे तब उन्होंने जहाँ पे इन्वेस्ट करना था प्रॉपरली इन्वेस्ट किया। तो ये दिखाता है कि टिम कुक जो थे, ही हिमसेल्फ वॉज वेरी शेयर होल्डर ओरिएंटेड, which Warren Buffett and investors like us who look up to Warren Buffett are also very fond of. Again, margin of safety, कंपनी 12 टाइम्स अर्निंग्स पे, यानी कि उसकी कंपनी का ईपीएस 12 टाइम्स था, 10 to 12 टाइम्स था, विच इज फार बिलो इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। तो आउटकम क्या रहा? बर्कशायर ने 35 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किया, जो आज के दिन 150 बिलियन डॉलर, 2021 में 150 बिलियन डॉलर हो गया। अब शायद कंपनी एग्जिट कर चुकी है, बर्कशायर एग्जिट कर चुका है, बट इवन देन आप देख पा रहे हो कि कितना हाई रिटर्न कमाए, सिंपली बिकॉज अब ये दो जो केस स्टडी हमने किया इससे हम कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, क्या क्या पैटर्न्स हमने देखा। दोनों कंपनी अपने अपने निश में, अपने एरिया में डोमिनेट कर रही थी। ये कंपनीज ऐसी नहीं थी जो अप एंड कमिंग थी, ये कंपनीज ऑलरेडी डोमिनेटिंग थी वहां पे। इन्होंने अपने ब्रांड को कैश फ्लो में कन्वर्ट किया है। बहुत सिंपल इकोनॉमिक्स है, कोई हैवी आर एंड डी नहीं है, कोई हैवी मशीनरी नहीं है, कोई बहुत रॉकेट साइंस वाले प्रोडक्ट्स नहीं है। एंड अगेन बफेट डिडंट चूज इनोवेशन और नोवेल्टी, ही चेज ड्यूरेबिलिटी। बफेट ना क्या करते हैं, ही ऑलवेज अटैक्स एट द ह्यूमन बिहेवियर। वो देखते हैं कि लोगों का क्या नीड रहता है, लोग को कैसे अपने प्रोडक्ट से एडिक्टिव करवाया जा सकता है, एडिक्टेड कराया जा सकता है। अब आप, हमारे और आपके लाइफ में भी ऐसा बहुत बार आएगा कि लोगों को नया इनोवेटिव प्रोडक्ट फेंका जाएगा कि नहीं ये देखो एक नई कंपनी है,
ये ऐसा कुछ कर रही है, ये कुछ नया नया कुछ मिसाइल बना रही है, नया कुछ प्रोडक्ट बना रही है, नया कुछ डिलीवरी सिस्टम या एग्रीगेशन मॉडल बना रही है, बिटकॉइन पे काम कर रही है। तो ये सारे चीज़ों को अगर नॉइज़ माना जाए, इन चीज़ों से अलग हटकर बफेट ने वही सेम ओल्ड कोल्ड ड्रिंक और सेम ओल्ड स्मार्टफोन, स्मार्टफोन को खेल सेम ओल्ड नहीं बोलेंगे, बट जिस समय बफेट ने इन्वेस्ट किया होगा उस समय प्रॉब्ली स्मार्टफोन में घुस रहे होंगे, बट व्हाट आई मीन टू से इज ही वेंट इनटू व्हाट इज़ वेरी मंडेन एंड बोरिंग एंड नॉट समथिंग न्यू। मतलब जो आपको और मेरे को समझ में आता हो वैसी चीज़ों में बफेट इन्वेस्ट करना समझते हैं। सो दिस इज़ द फाइनल कंक्लूजन कि व्हाट इज़ द फंडामेंटल चेकलिस्ट ऑफ वॉरेन बफेट। इज़ द बिजनेस अंडरस्टैंडेबल, क्या आपको और मेरे को समझ में आता है? कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग हिस्ट्री, यानी कि वॉरेन बफेट स्पेशली 50 साल या उससे ज़्यादा पुरानी कंपनीज प्रेफर करते हैं। जो कंपनी का ज़्यादा लंबा ऑपरेटिंग हिस्ट्री रहे वॉरेन बफेट उसी को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ने सब तरीके के दिन देख चुके हैं। जो मैनेजमेंट है इट हैज सीन एवरीथिंग, दैट इज व्हाई ही प्रेफर्स कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग हिस्ट्री। इज इट रन बाय ट्रस्टवर्दी मैनेजमेंट? तो हमने डिस्कस किया कि क्या क्या क्वालिटेटिव फैक्टर्स देख सकते हैं कि मैनेजमेंट ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है। अवेलेबल एट सेंसिबल प्राइस। कई बार क्या होता है, मार्केट तो एक सेइंग है कि मार्केट बिहेव्स लाइक अ ड्रंक मैन। समटाइम्स इट गेट्स वेरी इट गेट्स वेरी हैप्पी एंड समटाइम्स इट गेट्स वेरी डिप्रेस्ड. So we'll have to purchase shares at times when it gets very depressed, and then we'll have to hit the bat, swing the bat. अच्छा, लॉन्ग टर्म माइंडसेट एंड बिहेवियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दिन हम लोगों को आदत है कि हम लोग डेली अपने ऐप में या न्यूज़ चैनल्स में शेयर प्राइसेस देखते रहते हैं, अपने स्टॉक का प्राइसेस देखते रहते हैं, अपने पोर्टफोलियो का वैल्यू देखते रहते हैं। इसमें इमोशनल डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इन सब से बाहर, एक बार हमने इन्वेस्ट कर दिया ना, तो डोंट थिंक सो मच अबाउट इट एवरी डे। क्वार्टरली ट्रैक करना ज़रूरी है, एनुअली ट्रैक करना ज़रूरी है, बट ये ना हो कि आप इतने ऑब्सेस्ड हो जाओ कि आप डेली उसका प्राइसेस चेक कर रहे हो, क्योंकि हमें 5-10% नहीं कमाना है, हमें लॉन्ग टर्म गेम खेलना है। अगेन केस स्टडीज, दोनों केस स्टडीज से ड्यूरेबल ब्रांड दिखा, प्रेडिक्टेबल कैश फ्लोज दिखा, स्ट्रॉन्ग मोड्स दिखे दोनों के। सो दैट एंड अगेन आर्ट ऑफ पेशेंस। सो इस आर्ट ऑफ पेशेंस के लिए मेरे पास बहुत एक अच्छी कोट है। Investing should be more like watching paint dry or watching the grass grow. कितना बोरिंग काम है पेंट को सूखते हुए देखना या ग्रास को ग्रो होते देखना, बट इतना ही बोरिंग इन्वेस्टिंग भी होना चाहिए। अगर आपको एक्साइटमेंट चाहिए तो $800 लो और लास वेगस चले जाओ। So this is a saying, this is a funny saying. So this is what I meant by fundamental analysis. I think this is it. This is my presentation. Rashi, you can take over. Thank you so much. Thank you. I would just request if anybody has any doubt, they can just type it in the chat box. Yeah. I don't think Someone is there are. asking if they can ask orally. Sure, let me just give them the. Yes, so I have allowed them to speak. They can just unmute themselves. Yes, हेलो yes, Brajesh. Yeah, please tell me. आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलिए जी ना। सर, आपका आवाज सर आपका प्रेजेंटेशन तो बहुत ही बढ़िया था। थैंक यू। इसमें क्या है कि अपने जो है वॉरेन बफेट से थोड़ा ज्यादा प्रभावित हैं, चाहे ऑब्सेस्ड हैं, जो भी बोला जाए, लेकिन वो भी तो हाँ इन्वेस्टर तो है ही, बड़े इन्वेस्टर हैं। अपने इसमें राकेश झुनझुनवाला जी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनका कहीं कोई जिक्र नहीं है, वो भी तो टाइकून ही है। नंबर 2, इसमें मुझे ये जानना था, जैसे आपने बताया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है वॉरेन बफेट की तरह वो लोग सक्सीड करते हैं, वो डेली अपना मॉनिटर नहीं देखते, स्क्रीन नहीं देखते हैं। तो वॉरेन बफेट ने ये जो फंडामेंटल एनालिसिस बताया, ये तो देखिए टाइम से चेंज होता है। अकाउंट्स पहले एएस था, फिर इंड एएस आया, फिर सोचने का ढंग बदला,
जब से वॉरेन बफे इन्वेस्ट किए हैं तब से कितना चेंजेस आया ग्लोबली। अपने भी पहले हम्म। ग्लोबल नहीं तो ग्लोबल हो गए। आज के दिन में वॉरेन बफे क्या ऐसा कोई, जैसे सब लोग यूट्यूब में बताते हैं ना कि टेक्निकल एनालिसिस ऐसे होता है, फंडामेंटल एनालिसिस ऐसा होता है, तो वॉरेन हाँ। बफे ऐसा कोई 5 प्रिंसिपल बताए हैं क्या जिसको फॉलो करने से आदमी 20-25 साल के लिए इन्वेस्ट करके लंबा पैसा बना सकता है? थैंक यू ब्रजेश जी। अ, तो काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स बताए हैं वॉरेन बफेट ने, एंड मतलब उनके जो कोट्स हैं ना वो तो इतने फेमस हैं, इतने फेमस हैं। जैसे उन्होंने सबसे पहले बताया कि दो रूल है इन्वेस्टिंग का। एक तो डोंट लूज योर कैपिटल, एंड डोंट, रूल नंबर 2 इज डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1, यानी पहले रूल मत भूलिए। तो यानी कि उनका बोलने का मतलब ये है कि ऐसे कोई भी जगह हमें पैसा नहीं लगाने जहाँ पर हम वो पैसे को खो सकें। यानी कि ये नया बिटकॉइन आया इसमें पैसे लगा दिए, या ये कोई नया क्या बोलते हैं स्टार्टअप कंपनी आई जो अभी लिस्टिंग हुई है इसमें पैसे लगा दिए। तो ऐसे जगह पैसे नहीं लगाने जो हमें समझ नहीं आते हों। अच्छा, वॉरेन बफेट का एक और कोट है विच इज़, आई एम पैराफ्रेजिंग हियर, मतलब मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, बट वो ये भी बोलते हैं कि अगर आपको कुछ नहीं पता हो स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने के लिए, आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जो इंडेक्स इन्वेस्टिंग के रिगार्ड्स में बोला जाता है कि आपको अगर कुछ नहीं मालूम हो तो आप सिंपली इंडेक्स में पैसे लगा दो और भूल जाओ। तो मतलब उन्होंने बहुत सिंप्लीफाई किया, मतलब लोग क्या करते हैं ना कि जो जो इस फील्ड में है अक्सर क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज़ कि हम लोग चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। और वो लोग करते हैं इसलिए ताकि लोग उनके पास जाएं, उनसे पूछें। लेकिन क्या ये चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट नहीं हैं। बस थोड़ा सा कुछ कुछ एक चीज़ें हैं जो हम लोग को पता होनी चाहिए। एंड सिमिलरली और भी बहुत सारे कोट्स हैं, मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। मतलब 90-100 कोट्स हैं और आपको अगर खुद से पढ़ने हो ना तो वॉरेन बफेट के लेटर्स हैं, बर्कशायर हैथवे के लेटर्स हैं, शेयर होल्डर लेटर्स। उसमें बहुत अच्छे अच्छे कोट्स आपको मिल जाएंगे, आप उसमें जाकर पढ़ सकते हैं, वहाँ पे तो बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। नहीं, कोर्स तक तो ठीक है। हाँ। मैंने 5 पॉलिसीज बत पूछे। जैसे मान लीजिए कि आज मुझे इन्वेस्ट करना है तो मुझे 5 कंपनी वॉरेन बफे बता देंगे जिसमें 20 साल बाद इतना कंफर्म इतना कमाई हो जाएगी। ब्रजेश जी, वो क्या है ना कि एक आपको प्रिंसिपल्स बता सकते हैं, जैसे हम लोग प्रिंसिपल्स डिस्कस किए कि क्या क्या लगाया जा सकता है, क्या क्या थॉट लगाए जा सकते हैं। बाकी तो क्या है कि अपने ऊपर है। हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि कुछ अच्छा, मतलब उन उन तक शायद पहुंच सके, कि हाँ वहाँ तक शायद कुछ कुछ कहीं तक पहुँच सके। और क्या होता है ना, यहाँ पे एक डिफरेंस है जो हम लोग अभी डिस्कस भी कर रहे थे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो, 30 साल के लिए इन्वेस्ट करो, 40 साल के लिए इन्वेस्ट करो। तो इसमें एक डिफरेंस क्या आता है कि वॉरेन बफेट के पास हर साल मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं पैसे इन्वेस्ट करने को। तो उनको क्या है ना कि वो पैसे निकालने नहीं पड़ते या रिसाइकल नहीं करना पड़ता अपने अपने इन्वेस्टमेंट्स को। लेकिन हम और आपको क्या है ना कि हमको वो पैसे निकालने भी पड़ सकते हैं कई बार, नॉट नॉट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ओनली, वो तो हो ही सकता है। बट उसके अलावा क्या हो सकता है कि हमें कोई और बेटर अपॉर्चुनिटी दिख गया कि नहीं अभी तो मार्केट और टूटा है लेकिन मेरे पास एक और बेटर अपॉर्चुनिटी है कि नहीं इससे शायद ये ज़्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो कई बार हमें पैसे निकाल के दूसरी जगह लगाने पड़ते हैं। तो प्लेनली हम लोग सारी चीज़ें एज इट इज़ फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते। बट ओवर मतलब कुछ एक आइडियाज़ हैं, मतलब मैंने जो डिस्कस किया ना, तो ये कुछ एक आइडियाज़ हैं, ये कुछ एक प्रिंसिपल्स है जिसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं कि इसके इसके तहत हम लोग शायद कुछ एक इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ निकाल सकते हैं कि हाँ ये कंपनी अच्छी लग रही है, ये कंपनी दिख रही है अच्छी। तो वो आइडिया है ब्रजेश जी, मतलब वो तो ये नहीं बताएंगे कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट ये आइडिया है कि इस आइडिया के तहत अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट अपने ये समझ सकते हैं कि अपने शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में न जाएं, जाएं तो एकदम लॉन्ग टर्म के लिए जाएं। जैसा अभी आपने कहा कि हम हाँ। लोगों को बीच में पैसे निकाल के कहीं डाइवर्स्ट करना पड़ता है, चाहे इधर-उधर करना पड़ता है, जैसा जिसका राइट। रिक्वायरमेंट है। ठीक है? कोई राइट। 20-20 साल, 25-25 साल के लिए बहुत शायद ही कोई रेयर आदमी होगा जो रखा होगा। ठीक, ऐसा ही राइट। तो है। तो अब वही करेक्ट। तो कह रहे हैं कि कोई भी आदमी बोल्डली ये नहीं बोल सकता कितना ही बड़ा एक्सपर्ट हो। अगर वो मैनिपुलेटर है, तब तो बोल सकता है कि 5 कंपनी में इन्वेस्ट करो, यही 5 कंपनी आगे जाएगी। और अगर वो नहीं, मैनिपुलेटर नहीं है, तो सिर्फ अपने ज्ञान के बेसिस पे 25 साल का कोई गारंटी नहीं ले सकता, अकॉर्डिंग टू मी। मेरा नॉलेज कम है इसमें। सही सही बात है। इसमें क्या है ना कि अगर आप आज के दिन भी 10 कंपनी उठाओगे ना
तो वो हम्म 10-20 साल बाद, 25 साल बाद वो कौन अच्छी कंपनी रही उसमें से रहेंगी, कौन उसमें से टिकेंगी, ये कोई नहीं बोल सकता। इसलिए ये कोई नहीं इतना बोल सकता। मुश्किल भी है। क्योंकि आज से 25 साल पहले प्रॉब्ली हिंदुस्तान मोटर बहुत बड़ी कंपनी थी, बॉम्बे हम्म डाइंग बहुत बड़ी कंपनी थी, हम्म जो अब नहीं है, वैसे नहीं है। तो अब आगे 25 साल कौन होगा, क्या होगा, वो किसी को नहीं पता। बट ठीक। हम लोग बस देख ही सकते हैं, हम लोग बस समझ ही सकते हैं कि शायद ये अच्छा कर जाए। बस वही है, फिर 25 साल का जो अपना लॉन्ग टर्म विजन है वो तो अपने हाँ, फेल हो जाएंगे इसमें। कम पैसे नहीं, वाले अपने को अपने, है ना। मॉनिटर करते रहना है, ऐसा नहीं है कि बस इन्वेस्ट करके भूल गए। अपने को टाइम हम्म टू टाइम मॉनिटर करना है, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स आए तो उन्हें मॉनिटर करें, एनुअली हम्म। अपने एक बार मॉनिटर करें। तो वो सारा चीज़ देखना ज़रूरी है, इन्वेस्ट करके भूल नहीं सकते। तो जैसे अपने मॉनिटरिंग करने लगेंगे ना, अपना दिमाग दूसरे कंपनी की तरफ जाएगा, यहाँ से पैसा निकलेगा वहां जाएगा, नहीं, वापस अगर अपने कंपनी अच्छी बैक कर टू रही है तो स्क्वायर क्यों आप, वन। नहीं, वो बात बैक टू एकदम स्क्वायर सही है, वन। हाँ। 100% सही है, लेकिन उसमें एक ही खाली डिफरेंस है कि अगर आप हम्म जिसमें आपने इन्वेस्ट किया, हो सकता है वो अच्छी कर ही रही हो, या अगर हो सकता है हम्म किसी पार्ट में खराब भी करे, तो वो हम्म सब फिर समझना जरूरी है कि वो क्या शॉर्ट टर्म है कि ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, हम्म। वो चीज़ मैं समझना चाहूंगा जरूरी सर एक बार कि आप ना राकेश झुनझुनवाला जी का भी कुछ हम लोगों को बताएं, क्योंकि भी अपने फ्रेटर्निटी से हैं, उन्होंने भी ठीक है। अच्छा ही किया था। तो अपने बिल्कुल उनका भी बिल्कुल। थोड़ा सा देखें कि उनका अप्रोच में और वॉरेन बफे के अप्रोच में क्या डिफरेंस है, और अपने किसको ज्यादा आइडियल बना सकते हैं। ठीक है ब्रजेश जी। ओके, थैंक यू। थैंक यू। Okay, so if there are any further questions, they can write it in the chat box. Oh, I don't think there are any further questions. And we're already past the deadline, so I think we should just wrap up the session. So I would like to extend a heartfelt gratitude to Mr. Pushpdeep Rungta for his thoughtful and insightful talk. The expert guidance and practical approach shared today have certainly added immense value and clarity to our understanding of fundamental stock analysis and will surely inspire us all to apply these concepts in our future evaluation and financial decisions. I would like to thank you, sir, for taking out the time for conducting this session. थैंक यू। थैंक यू सो Thank मच। you.